friends, this is Ashwini Sadnarjun Dwivedi, Assistant Professor, Law College Dehradun, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने कई लेक्चर देखे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, कुछ सोशल और लीगल एस्पेक्ट पे। एक वीडियो आपने देखा कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जल्द ही जीडीसी के हिसाब से कुछ टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो कुछ नेट का एग्ज़ाम जैसे होने वाला है और एक दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बचे हुए नोट्स तो पढ़ते रहेंगे। लेकिन आज जो है मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मेरे साथ स्पेशली पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाइए, आराम से आप सुनते रहिए और आप देखेंगे कि सुनते सुनते ही कई चीज़ें आपको अच्छे से अपने आप तैयार हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? कुछ जनरल बातें करनी है हमें आज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे विच आर वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड लॉ। लॉ को समझने के लिए जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप जनरली केवल इतना समझ लीजिए कि लॉ इज़ नथिंग बट ओनली कॉमन सेंस। कि एक प्रूडेंट पर्सन को जो लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, लॉ भी वही करेगा, क्योंकि लॉ जो बनाया जाता है ये फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये बेसिक्स हैं, आप सबको पता है। इवन देन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक्स लेके चलूँगा। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Before understand what is contract, I think it is very necessary to know what is law. Whenever we discuss the term law, we can say law is just set of rules which governs the society, or we can say to govern the society some rules are very necessary and those rules are called law. Now, law may be divided into two parts. First, codified law, and second, uncodified law. Codified law means if any law which has sections or articles, it is called codified law. Uncodified law means if there is no space for any section or any article, then it is called uncodified law. Now I am going to discuss a very important point, that is codified law means any law which has sections or articles. So first thing, Indian Constitution is a codified law, and Indian Contract Act, Indian Penal Code are codified laws. Then why we use term article under Indian Constitution and we use sections under other laws? Indian Penal Code, Indian Contract Act, Transfer of Property Act, Indian Evidence Act. There is no major difference between section and article, because Constitution is the law of the land. Or we can say in India, no law can be made which infringes or violates the provision of Indian Constitution. So only for the token of respect the term article has been used in Constitution. Otherwise there is no major difference between the term section and article. One interesting thing is the Indian Penal Code or the Indian Contract Act, both are codified law. Indian Contract Act, codified law.
because there are sections. Indian Penal Code is also a codified law because there are also sections. Then what is the need? We call Indian contract an act and Indian Penal Code a code. If both are codified law, then either both should be called act or both should be called code. It means there may be a difference between act and code. Yes, there is a difference. Code is exhaustive. Code is complete in itself. Means if you want to understand a particular meaning of a term in any code, you have no need to go beyond that particular code, because whatever the meaning has been prescribed in the code, that is sufficient and complete. But the act is not complete. If you want to understand the meaning of a particular term, you may have to go beyond that particular act. For example, Transfer of Property Act. The whole Transfer of Property Acts govern to transfer the immovable property. And the definition of immovable property has been given negative definition. Means under Transfer of Property Act, the immovable property includes standing timber, is not include standing timber, growing crops and grass. It means standing timber, growing crops and grass is not immovable property. And this definition does not reveals what is immovable property. So friends, to understand the meaning of immovable property, we have to move in another act, that is called General Clauses Act. So this is a difference between act and code. Code will be exhaustive or code will be complete. But an act should not be complete or it will not be exhaustive. Friend, likewise, law may also be divided into two parts. That is substantive law and second is procedural law. Substantive law only provides the rights and liabilities of the citizen. It defines the crime and provides the particular punishment for that very crime. For example, Indian Penal Code is a substantive law. It defines the theft. It defines or provides what will be the punishment if any person committed theft. But the punishment to that person will be given by the procedural law. That procedural law is CRPC. The procedural law of civil laws is CPC and the procedural law of criminal laws is CRPC. फिर से देखते हैं लॉ क्या है. लॉ कुछ रूल्स हैं जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जरूरी है. लॉ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड. कोडिफाइड लॉ का मतलब हो गया जिसमें सेक्शन या आर्टिकल दिए होंगे. अनकोडिफाइड का मतलब हो गया जिसमें सेक्शन या आर्टिकल नहीं दिए होंगे. अब कई लॉज में सेक्शंस दिए हैं, केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया गया है. तो सेक्शन और आर्टिकल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बस आर्टिकल को अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमने यूज़ किया है क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे. इसके बाद हमने देखा एक्ट में और कोड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कोडिफाइड लॉ है दोनों, लेकिन एक को एक्ट कहा गया एक को कोड कहा गया है. तो एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, उसके किसी भी मीनिंग को समझने के लिए हो सकता है दूसरी जगह भी जाना पड़े. लेकिन कोड जो होता है ये अपने आप में कंप्लीट होता है. इसके बाद अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं या कर सकते हैं, सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ हमें ये बताता है कि राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या है, कोई पर्टिकुलर क्राइम की डेफिनेशन क्या है और अगर कोई पर्सन वो क्राइम करता है तो पनिशमेंट क्या है.
इसके अलावा प्रोसीजर लॉ हमें बताता है कि अब ये पनिशमेंट तो दे दिया गया, जैसे किसी ने चोरी की है उसकी सज़ा भी दे दी गई, कितनी सज़ा है, लेकिन वो सज़ा उसको मिलेगी कैसे, ये कौन बताएगा, प्रोसीजर लॉ बताएगा। प्रोसीजर लॉ कौन कौन से है, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक जनरल डिस्कशन होगा अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दो तरह के लॉ होते हैं, कुछ सिविल लॉ होते हैं, कुछ क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है ये और देख लीजिए। देखिए अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप देखिए, इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन, if there is any violation of legal right, not right, legal right by a person, then it is called wrong. And if that wrong is prescribed in any penal laws, that will be a crime. इंडियन पिनल कोड में अगर कोई भी चीज़ ऑफेंस बता दी गई है तो रॉन्ग है वो, लेकिन वो रॉन्ग क्या है, क्राइम कहलाता है। लेकिन अगर कोई रॉन्ग जो है वो किसी क्रिमिनल लॉ में, किसी पिनल लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन ये क्या होगा, सिविल रॉन्ग होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सिविल रॉन्ग, और इंडियन पिनल कोड में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है। अब सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या हो सकता है, देखिए जनरली जितने भी ये अधिक पनिशमेंट वाले जितने भी रॉन्ग हैं ये आ जाते हैं क्राइम में, और प्रॉपर्टी को लेके, ऑफिस को लेके ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये आ जाते हैं सिविल मैटर कहलाते हैं, वो क्रिमिनल मैटर कहलाते हैं। सिविल मैटर के लिए सिविल कोर्ट में जाना होगा और क्रिमिनल मैटर के लिए क्रिमिनल कोर्ट में जाना होगा। अच्छा, किस कोर्ट में जाना है ये कैसे डिसाइड होगा, तो सिविल में तो इससे डिसाइड हो जाता है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, उससे पता लग जाता है किस कोर्ट में जाना है। और क्राइम में इस बात से पता लग जाता है कि जिस क्राइम के लिए आप कोर्ट जा रहे हैं उसमें पर्टिकुलर पनिशमेंट कितना है। तो सिविल के लिए आप सिविल कोर्ट जाएंगे, क्राइम के लिए क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि सिविल और क्रिमिनल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है कि सिविल में कंपाउंडेबल होता है, यानी कि सिविल में पार्टीज अगर चाहें तो कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, लेकिन क्रिमिनल जो है ये ज़्यादातर कंपाउंडेबल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिमिनल क्राइम जब होता है ये अगेंस्ट द स्टेट होता है। तो इसमें प्रोसीडिंग किसकी तरफ से स्टार्ट होती है, स्टेट की तरफ से स्टार्ट होती है, जबकि सिविल लॉ में प्रोसीडिंग किसकी तरफ से स्टार्ट होती है, इंडिविजुअल पार्टी की तरफ से स्टार्ट होती है। ठीक, तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आगे हो सकता है बार बार इन टर्म्स का यूज़ हो और हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ with this discussion we are in position to say that contract is a civil wrong, but tort is also a civil wrong. Then what is the difference between contract and tort, कि कॉन्ट्रैक्ट में और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजर तो आप ये समझ लीजिए, बाकी आप जब टॉर्ट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज ऑब्लिगेशन बियर करते हैं वो बियर करते हैं ड्यू टू द एक्ट ऑफ द पार्टीज, कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज खुद अपने ऊपर ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, ऑफर किया, एक्सेप्टेंस आ गया और ऑब्लिगेशन किसकी वजह से हुआ, पार्टीज के एक्ट की वजह से। जबकि टॉर्ट में ये ऑब्लिगेशन होता है ड्यू टू लॉ। लॉ कहता है कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन हमने इम्पोज की है। ये एक डिफरेंस कभी कभी पूछ दिया जाता है टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट। आगे जैसे जैसे हम ये चीज़ें आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कई कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं किस पे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे भी एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, एक बिल होता है, एक एक्ट होता है। एक्ट जब भी लिखेंगे तो उसका ए हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। बिल क्या होता है कि जब भी कोई लॉ बनाना है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा, बिल ही रहेगा। जब कोई इंट्रोड्यूस किया जाता है कानून तो वो बिल होता है, लोकसभा से पास कराया, राज्यसभा से पास कराया, अभी भी बिल है। जैसे ही प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा इस पे तो अब ये क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है
1872 का, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं थे, उस समय भी कई लॉज थे, लेकिन वो ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस से गवर्न होता था। कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉ थे वो एक जगह पे नहीं थे। तो 1872 में ये आ गया एक्ट। whenever we are going to discuss any particular act, some important points should be noticed. First, whether there is any preamble of the act, because the preamble of the act is very important concept, because preamble of the act reveals what was the purpose for which that particular act had been enacted. And if we are in position to understand what was the purpose of that particular statute makers, then it is easy to understand what is the object of that particular act. After that, enforcement date, कब से इन्फोर्स होगा ये, शॉर्ट टाइटल, इसका नाम क्या होगा, और इसका एक्सटेंड कहाँ तक होगा। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए, मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। हमने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक। हाँ, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पढ़ते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। अब अगर हम सबसे पहले इसकी बात कर लें सेक्शंस की, तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट का हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी कोडिफाइड लॉ है उसको पढ़ने के लिए बेयर एक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी इस लेक्चर को सुनिए, इसके तुरंत बाद बेयर एक्ट आपके हाथ में होना चाहिए और एक एक चीज़ क्रॉस चेक होनी चाहिए, क्योंकि मुझसे हो सकता है कुछ गलत निकल जाए। तो आप भरोसा कीजिए केवल बेयर एक्ट पे। अब कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट आप लेंगे, ठीक है, जब भी आप बेयर एक्ट लेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, कल को टीपीए पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, धीरे धीरे इतने लॉज आ जाएंगे, इतने सेक्शंस आ जाएंगे, इतना केस लॉ आ जाएगा, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें ये कौन कौन सा याद करना है। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक आंसर शीट पे, एक पेज पे सब चीज़ें लिख के उनको रट के याद कर लें, नहीं पॉसिबल। इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे अगर आपको कोई गाना याद हो जाता है तो वो गाना क्या आप किसी पेपर पे लिखते हैं उसके बाद याद करते हैं? नहीं, आप उसको 2-4 बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, साथ में आपको याद हो जाता है। इसकी दो वजह हैं, एक तो रिपीटिशन होता है बार बार, और दूसरा आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना होगा, और किसी भी सेक्शंस को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है रिपीटिशन। कोडिफाइड लॉ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप बेयर एक्ट के साथ पढ़िए, और दिन में 1-2 बार जो उसका स्टार्टिंग में दिया होता है कि किस सेक्शन में क्या है, इसको केवल देखते रहिए, बस याद मत कीजिए। अगर आप 7 दिन कर लेंगे तो मेरा चैलेंज है कि जितने भी सेक्शंस हैं आपको सब याद हो जाएंगे, लेकिन रिपीटिशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेली का मतलब डेली 2 मिनट या 3 मिनट का काम है, ये आप कर लेंगे। अब हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जब आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक प्रॉपर दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 ये रिपील हो गया है। The section 76 to section 123 has been repealed in Indian Contract Act, and these sections has been enacted a separate law, separate act, and that is called Sale of Goods Act 1930। कि सेक्शन 76 से 123 के बीच के जितने भी सेक्शन थे उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा लिया गया और पूरा एक अलग एक्ट बना दिया गया जिसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से जाना गया है। वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम। ऐसे ही सेक्शन 239 से लेके और सेक्शन 266 ये भी रिपील कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट से, एंड इट इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब whenever we start to define or to understand the contract by the Indian Contract Act,
The first thing is preamble. Preamble is very important part of any act because it reveals what was the very object or purpose for which that particular act has been enacted. क्या वजह थी? The preamble of Indian Contract Act provides that whereas it is expedient to define, first thing is to define and amend, to define and amend certain parts of the law relating to contract. यानी इसका पर्पस क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स, यानी कि द होल लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कवर्ड अंडर दिस एक्ट. इन्होंने क्या कहा, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन, उसको डिफाइन करना, अमेंड, अगर कहीं पे कुछ अमेंड करने की जरूरत है अमेंड करना, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रीएम्बल ने बताया. इसके बाद आता है कि ये इन्फोर्स कब से हुआ, क्योंकि कोई भी लॉ जो है उसका एक एनफोर्समेंट डेट होता है. एनफोर्समेंट डेट ये बताता है कि ये लॉ एप्लीकेबल कब से होगा. तो जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872. कि 1 सितंबर 1872 से हमारा ये क्या हो गया, एनफोर्स हो गया. व्हाट इज टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट? दिस इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक्सटेंड इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में ये लागू होगा. लेकिन अब जब आर्टिकल 35A रिपील हो गया है तो अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा. ये तो एक फ्रेंड जनरल बात हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, प्रीएम्बल क्या कहता है, उसका एनफोर्समेंट डेट क्या है. फिर से आप देख लीजिए, प्रीएम्बल ने कहा है कि कुछ पार्ट्स को हमें क्या करना है, अमेंड करना है और डिफाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट के, तो ये हमारा पर्पस है. एनफोर्समेंट डेट इसकी क्या है, 1 सितंबर 1872. नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872. एक्सटेंड कहाँ तक है, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और 35A के बाद अब ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every agreement if it is enforceable by law, that is contract. Means agreement if can be enforced by law, it is contract. Now question arises, what is agreement? Section 2E of Indian Contract Act provides that promise or group of promises forming consideration to each other, that is agreement. Now question arises, what is promise? According to section 2B, whenever a proposal is accepted, it becomes a promise. Now question arises, what is proposal or what is offer? Section 2A defines the term proposal. When someone signifies his willingness to do or abstain from doing, to get another's assent, that is offer. Means whenever any person signifies his willingness to do or not to do and purpose is to get another's assent, that is called offer. Now we will start from offer. What is offer? When someone signifies his willingness to do or not to do and purpose is to get another's assent, that is offer. When any offer is accepted, it becomes a promise. And promise or group of promises forming consideration to each other, that is agreement. And if that agreement is enforceable by law, that is contract. Here friends, we use the term consideration. We will discuss consideration in very detail afterwards, but here you have to understand that consideration means something in return. For example, if you take a pen or if you buy a pen for 10 rupees,
then the consideration of 10 rupees is pen, and the consideration of pen is 10 rupees. Clear? Contract agreement enforceable by law. So with this discussion we can say that every contract is an agreement, but all agreements are not considered to be contract, because only those agreements can be considered as contract if those agreements can be enforceable by law. Now question arises, what is enforceability? Here we can understand that contract is equal to agreement plus enforceability. Okay, we can say that contract is equal to agreement plus enforceability. Now enforceability means section 10 plus intention to create a legal obligation. Means contract is equal to agreement plus enforceability, and enforceability means fulfillment the conditions provided under section 10 of Indian Contract Act plus intention to create a legal relationship. Friends, we can say that if any agreement which fulfill the conditions of section 10 and that agreement has been made with the intention to create a legal obligation, then it will be a contract. Now question arises, what is intention to create a legal obligation? Friends, there may be two types of obligations. First, social obligation and second, legal obligation. देखिए सोशल ऑब्लिगेशन में क्या होता है, जो हम जनरली झूठ बोलते रहते हैं दिन भर, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ में भी हम दिन में हर समय क्या करते रहते हैं, किसी को ऑफर ही करते रहते हैं. जैसे हमने किसी से कहा आओ चाय पीने चलें, क्या है, ऑफर है. हमने कहा मूवी देखें, ऑफर है. देखिए जो पर्सन ऑफर करता है उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम प्रॉमिसी कहते हैं, या ऑफरर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम ऑफरी कहते हैं. ये क्या होता है, प्रपोजल होता है. प्रपोजल का मतलब क्या होता है, प्रपोज करना. तो अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो ये भी क्या है, प्रपोजल दे रहे हैं आप उसको क्या कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं. अब आपने किसी को प्रपोज किया, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया. और अगर ये प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है तो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया. और अगर आपका ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स है तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई एग्रीमेंट तब इन्फोर्स कराया जा सकता है अगर वो हो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदलता है. अब सोशल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, जैसे हमने किसी से कह दिया कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तो ये क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है. अच्छा, हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा सोशल ऑब्लिगेशन है और कौन सा लीगल ऑब्लिगेशन है? अगर कोई ऐसा ऑफर किया है, कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, और जो प्रूडेंट पर्सन है उसके दिमाग में अगर ये आएगा कि अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो दूसरा पर्सन क्या है, कोर्ट चला जाएगा. इफ द एग्रीमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, then a prudent person thinks that another person will move towards the court for remedy, then it will be considered a legal obligation. कि अगर हमने किसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है, जैसे हमने किसी से कहा कि भाई हमको जो है इस डेट को हमारे यहाँ मैरिज है, हमको इस डेट को इतना ये सामान चाहिए, या हमारी कोई कंपनी है, हमने कहा कि ठीक है हमें दूसरे को हमने ऑर्डर ले रखा है, इस डेट को हमें भेजना है, तो इस डेट तक आप इतना सामान जो है वो हमारे यहाँ पहुँचा देंगे. ये सब लीगल ऑब्लिगेशन कहलाते हैं.
और लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन अगर है तो वो कैसे पता लगेगा कि ये हर केस के फैक्ट टू फैक्ट वेरी करेगा और कोर्ट ये डिसाइड कर देगा उस केस के फैक्ट को देख के कि क्या ये इंटेंशन लीगल था या सोशल था। सोशल जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने क्या कोई पर्सन अपनी वाइफ से कहता है कि अगर पूरे दिन तुम बिल्कुल, अब जैसे इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में पूरे दिन दोनों का एक साथ रहना और झगड़ा ना होना, ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो मान लीजिए अब एक कोई पति है वो इतना परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अगर पूरे दिन तुम नहीं बोलोगी बिल्कुल भी तो हम तुमको एक रिंग देंगे। बीवी ने कहा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप कहेंगे इसके बदले में कंसिडरेशन क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हस्बैंड रिंग देगा उसके कंसिडरेशन में उसको मिलेगा एक सुख चैन भरा दिन, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन के लिए अगर किसी को मतलब स्पेशली अगर फीमेल को ये कह दिया जाए कि आपको बोलना नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा ये सज़ा हो गई। इवन देन इसने जो वाइफ थी जितनी कोशिश कर सकती थी, अपना पूरा पेशेंस था वो इसने रखा और पूरे दिन अपनी पूरी जान लगा के ये एक शब्द भी नहीं बोली। इसके बाद सुबह जब इसने कहा कि रिंग दो, तो पतिदेव ने मना कर दिया, बोले हम तो मजाक कर रहे थे ऐसे ही। तो अब ये वाइफ अगर चाहे तो इस चीज़ के लिए कोर्ट नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। तो हस्बैंड एंड वाइफ बात करते हैं, आप देखेंगे फ्रेंड ज़्यादातर यही करते रहते हैं। आपसे कह दिया कि चलो भैया आज हम आपको चाय पिलाते हैं, रास्ते में हमें कोई दूसरा मिल गया तो हम उसके साथ निकल गए, आपको वो मिले ही नहीं है। तो ये डेली रूटीन में जितनी भी ये सोशल बातें होती हैं, इनको हम मानते हैं कि इनका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस पर कुछ केस लॉ भी है, आगे आप देख सकते हैं, जैसे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का है, ठीक है। तो ये किस बात पे है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम केवल बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की। यानी कि अभी जो आपने समझा है आप उससे केवल इतना समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशनशिप। अब लीगल इंटेंशन भी है अगर, तब क्या होगा, क्योंकि सेक्शन 10 में क्या क्या चीज़ें दी है, तो सेक्शन 10 तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए सेक्शन 10 क्या कहता है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो पार्टीज हैं ये कॉम्पिटेंट हो। अभी हम आगे देखेंगे कौन कॉम्पिटेंट है। कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट, कंसेंट जो है वो फ्री हो। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा हो? लॉफुल हो। एंड इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्रीमेंट देन दोज कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। यानी कि अगर आप बहुत आसानी से देखिए तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके। अब लॉ के द्वारा इन्फोर्स कौन सा एग्रीमेंट को कराया जाएगा? जो सेक्शन 10 की कंडीशंस को पूरा कर दे और उसका इंटेंशन जो वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का हो। अब सेक्शन 10 में क्या कह दिया गया है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, कंसेंट फ्री हो, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन लॉफुल हो, और अगर किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट को करने के लिए अगर कोई एक स्पेशल क्वालिटी स्पेशल चीज़ बताई गई तो वो फुलफिल हो। जैसे जब भी कोई इमोबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है तो ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है। और इमोबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हमेशा क्या होता है? रजिस्टर्ड डीड से होता है, उसको आप ओरल नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन राइटिंग में होना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स हमने केवल आज ऐसे स्टार्ट किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप केवल इसको सुन ही लेंगे एक बार और साथ में बेयर एक्ट रख लीजिए, तो मैं चैलेंज करता हूँ बेटा कि कम से कम नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि इसको मिस मत कीजिए।
जितनी मेहनत से मैं इसको रोज़ एक लेक्चर बनाऊंगा, आप भी उसको साथ साथ में सुनते चलिए, और जितना सुन लिया है उससे, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट साइड में अपना नोट्स बनाते चलिए। जो चीज़ मिसिंग लगे आपको मेरे में से, वो आप बेरेक्ट से पूरी कर लीजिए। केस लॉ एक एक करके मैं साथ में बता दूंगा, उसके बाद मैं कोई बुक बता दूंगा जिससे आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको लेक्चर ज़रा भी समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके रोज़ के लेक्चर जो है वो टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स अलॉट।